Retirement and death of the partner. As you know, that retirement and death of the partners leads to reconstitution of the partnership. जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो पुरानी डीड के अकॉर्डिंगली हम उसको उसकी कैपिटल और उसका शेयर इन द प्रॉफिट, एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने ले रखी है उसमें से उसका शेयर, किसी तरीके का प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन और लॉसेस ऑन रीवैल्यूएशन उसको हम वापस कर देते हैं. And the existing partners work out with the new partnership deed to continue the business. Here, as in the case of admission, the various accounting aspects involved on the retirement of death of a partner are as follows. Number 1. Ascertainment of new profit sharing ratio and the gaining ratio, treatment of the goodwill, revaluation of assets and liabilities, adjustment in respect of unrecorded assets and liabilities, distribution of the accumulated profits and losses, ascertainment of share of profit or losses up to the death or retirement, adjustment of capital if required, and settlement of the amounts due to the retired or deceased partner. So let us take these adjustments one by one. First is न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3 केसेस होंगे. केस 1, नॉर्मली द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और अगर वो पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग में रिटायर्ड या डिसीज्ड पार्टनर का शेयर एक्वायर कर लेते हैं, देन देयर इज नो नीड टू कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम, बिकॉज यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, या फिर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होगी. In fact, in the absence of any information regarding profit sharing ratio in which the remaining partners acquire the share of retiring or deceased partner, it is assumed that they will acquire it in the old profit sharing ratio and so share the future profits in their old profit sharing ratio. Now let us take one example. A, B and C are the partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. C retires and A and B decided to continue the share in the old profit sharing ratio only. So इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग will be equivalent to the old profit sharing ratio, that is 2:1. So there is no need to compute any new profit sharing ratio. Case 2. Case 2 is when the continuing partner may acquire the share of the profits of the retiring or deceased partner in the proportion other than their old profit sharing ratio. तो यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, and it will be equal to the sum total of the respective old shares and the share acquired from the retiring or deceased partner. Now let us take one example. A, B and C are the partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. Now C retires. A and B decided to share the future profits equally. So यहाँ पे अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकलेगी? ओल्ड रेशियोज ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्लस व्हाट दे हैव एक्वायर्ड फ्रॉम द शेयर ऑफ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर. तो ए का शेयर क्या होगा? ओल्ड रेशियो उसकी कितनी है? 2:4. और न्यू रेशियो उसको जो एक्वायर हुई, जो उसने शेयर सी का एक्वायर किया, वो कितना किया? 1/2. सी का शेयर क्या था? 1/4. सो 1/2 ऑफ द 1/4 प्लस द ओल्ड रेशियो दैट इज 2/4 एंड द रिजल्ट विल बी 5/8. इसी तरीके से बी का शेयर, ओल्ड शेयर प्लस द शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम सी, एंड शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम सी बाय बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/4. और उसका पुराना शेयर खुद का भी था 1/4. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर बी विल बी 1/4 प्लस हाफ ऑफ 1/4 मीन्स 3/8. Ultimately, the new ratio for the new partnership firm will be 5:3. Case 3. When the continuing partners may agree on a specified new profit sharing ratio. वहाँ पे फिर new profit sharing ratio हमें दी ही होगी, इसलिए we will not be requiring the calculation of any new profit sharing ratio. Second thing, gaining ratio. अब हमें ये देखना है कि हम gaining sharing ratio निकालते ही क्यों हैं. We calculate the gaining ratio when the new profit sharing ratio of the continuing partner is specified. अब अगर हमें वो रेशियो न्यू दी होगी तो हम उसमें से गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे.
और गेनिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू में से उसका ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे तो हमारे पास गेनिंग रेशियो आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। सी रिटायर हो गया। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर द न्यू प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या हुई? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो फॉर ए इज 2/3 and its old ratio was 2/4. So gaining ratio is equal to 2/3 minus 2/4 means 2/12. Similarly for B, the new ratio is 1/3 and old share was 1/4. So the gaining ratio will be 1/12. So total gaining ratio for A and B will be 2/12 is to 1/12 means 2 is to 1. Third step, treatment of goodwill. The retiring or deceased partner is entitled to his share of the goodwill at the time of the retirement or death, because goodwill has been earned by the firm with the efforts of all the existing partners. अब रिटायरिंग पार्टनर कहता है कि मेरी वजह से आपको गुडविल मिली, इसलिए गुडविल में से जो हिस्सा मुझे बनता है वो मुझे दे दीजिए. So hence at the time of the retirement or death of the partner, goodwill is valued as per the agreement among the partners. So इसलिए जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको उसकी गुडविल की कंपनसेशन मिल जाती है फ्रॉम द कंटिन्यूइंग पार्टनर, क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर की जाने की वजह से कुछ गेन हुआ. Now let us see the accounting treatment. The accounting treatment for goodwill in such a cases depend upon two cases. Number one, if the goodwill does not appear in the books of account, and number two, if the goodwill appears in the books of account. तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर गुडविल बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि आप गुडविल को फुल वैल्यू पे रेज कर लीजिए. तो जब गुडविल को फुल वैल्यू पे रेज करेंगे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? गुडविल बीइंग द एसेट ऑफ द कंपनी. तो हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट. अब इसमें रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर का भी कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे, और क्योंकि ये गुडविल उस टाइम की है जब सारे पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं तो उस गुडविल को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शो करते हैं. सेकेंड पॉइंट, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली. अब गुडविल को फुल वैल्यू पे रेज कर लीजिए, जो हमने पहली एंट्री में भी किया, जैसे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फिर इसको रेज करने के बाद अब हमने राइट ऑफ कर देना है. देखिए, जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो डिसीज्ड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर तो चला जाएगा, इसका मतलब हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर बनेंगे और रिमेनिंग पार्टनर के अकाउंट्स में हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे. और यहाँ पे किस रेशियो में हमें राइट ऑफ करना है? यहाँ पे हमें उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ करना है. सो आवर एंट्री विल बी remaining partners capital account debit in the new profit sharing ratio to goodwill account, and here the goodwill will be shown on the full value. Third point is, when the goodwill is raised to the extent of retiring or deceased partner's share and is written off immediately. अब पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम फुल गुडविल को रेज नहीं करेंगे, तो जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बनता है उतनी गुडविल ही रेज की जाएगी और फिर उसी गुडविल को हमने राइट ऑफ कर देना है. सो हेयर द एंट्री विल बी, first of all, to raise the goodwill, that is goodwill account debit to retiring or deceased partners capital account. अब उतना ही हिस्सा रेज करना है जितना रिटायरिंग पार्टनर को जाता है. सो गुडविल अकाउंट के सामने हम लिखेंगे प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द गुडविल, वो प्रोपोर्शन जो रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर का होता है. और डिसीज्ड पार्टनर को कौन से रेशियो में हमने गुडविल देनी है? अकॉर्डिंग टू हिज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. And when the goodwill is written off, then the goodwill will be written off in the gaining ratio of the new partners. जो existing partner रह गए हैं वो उस goodwill को adjust करेंगे अपने accounts में, और जिस account से, जितने अमाउंट से उन्होंने प्रॉफिट को गेन करना है उतने ही अमाउंट से ये गुडविल वो अपने अपने अकाउंट्स में एडजस्ट करते हैं. तो हमारी एंट्री क्या बनती है? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन द गेनिंग रेशियो to goodwill account, and goodwill will be shown with the proportionate amount of the deceased or retiring partner. D case,
When no goodwill is raised at all in the firm's book, जब हम गुडविल की अमाउंट लिखेंगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे? तो इसका मतलब गुडविल में जितना भी डिसीज्ड पार्टनर का शेयर होगा उतने शेयर को दोनों पार्टनर मीन्स जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे, सो उतने शेयर को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में शेयर कर लेंगे. सो एंट्री विल बी continuing partners capital account debit to retiring or deceased partner capital account in the gaining ratio. Let us take one example.